incident light have two wavelengths. Okay, so in the diffraction pattern there is an incident light, and this incident light has two wavelengths. Okay, the incident light has two wavelengths. If light is monochromatic, then there is only one wavelength, but it is dichromatic. Dichromatic. So it has two wavelengths. Lambda 1 and lambda 2. The fourth minima due to lambda 1 is observed. The fourth minima due to lambda 1 and the fifth minima due to lambda 2 is observed at 5 mm distance from central maximum. 5 mm far from the central maximum. Find the values of lambda 1 and lambda 2. Okay, so you have to find the wavelengths of incident wave where lambda 1 and lambda 2, the wavelengths are making their minima, fourth and fifth minima respectively at 5 mm distance from the central maximum. The distance between screen and lens is 1 meter. Width of the slit, that is small a, is 0.04 mm. That's it. Okay, so please try it. It's very simple. You have to apply the formula of minima, diffraction minima. आप लोगों को diffraction minima का formula apply करना है. A sin theta equal to m lambda. ठीक है. और sin theta क्या होता है? Sin theta को हमने एक डायग्राम बनाया था. उसमें स्क्रीन था, लेंस था. फिर हमने बोल दिया लेंस is very near to the slit. Then sin theta is x upon f. वो approximate formula apply किया था ना. Focus distance f. तो यहाँ फोकस डिस्टेंस वही हो जाएगा 1 मीटर, है ना. और x ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 5 mm. तो x अपॉन f तो हो गया साइन थीटा, और a साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा है. ठीक है, a तो सेम ही रहेगा. a कितना है 0.04. साइन थीटा आपको पता ही चल गया m. अब लैम्डा 1 के लिए m हो जाएगा 4, लैम्डा 2 के लिए m हो जाएगा 5. ठीक है, तो इससे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकाल लें. जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए. जो कैलकुलेट कर ले वो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा. आई विल अनम्यूट हिम. अंकुर कुमार, वेरी गुड. अंकुर कुमार ने कर लिया, और किसी ने भी किया है? गौरव,
वेरी गुड गौरव सोनकर। और बताइए और किसने कर लिया? सुमित कुमार, वेरी गुड। तो चलिए बताइए आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कितना मिला? एंगस्ट्रम में बताना है, ठीक है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों एंगस्ट्रम में बताएंगे। नीतीश मोदी एंगस्ट्रम में बताएंगे। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, शिव प्रसाद। ओके, तो गौरव सोनकर। Yes, ma'am. Hello, am I audible, ma'am? गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. The value of lambda 1 is 440 Armstrong, and the value of lambda 2 is 360 Armstrong. Is it correct? Okay, Sumit Kumar. Ma'am, my answer is a bit different. 0.02 10 to the power minus 10 Armstrong, and lambda t is equal to 8 by 5. 8 by 5 into 10 to the power minus 10 Armstrong. Nitish Modi. One is 500 angstrom and lambda 2 is 400 angstrom. Yeah, 5000 angstrom. Lambda 1 is 5000 angstrom. Nitish. Ma'am, 500 is coming, ma'am. Yes, ma'am. 10 raised to power minus 7 meter. No? Lambda 1 is 5 into 10 raised to power minus No. 7. Ma'am, 5 into 10 to the power minus 8 आ रहा है, ma'am. Minus 8 आ रहा है. 0.04. Yes, ma'am. 0.04 mm. ये हो जाएगा 4 into 10 raised to power minus Yes, 5. ma'am. 4 into. Yes, ma'am. 10 raised to the power minus 5 ma'am, and 5 mm ma'am, 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5 and minus 3 10 to the power minus 8 आ जाएगा मैम. हाँ, ठीक 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 है, 500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. Yes, ma'am. ठीक है, और वो 400 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. शिव Yes, ma'am. प्रसाद. ओके, गुड गुड नीतीश. नीतीश का आंसर ठीक है. शिव प्रसाद. हेलो शिव प्रसाद. मोहम्मद अदनान. Ma'am, lambda 1 500 angstrom and lambda 2 400 angstrom. वेरी गुड, वेरी गुड. सुधाकर. मैम lambda 1 500 angstrom and lambda 2 400 angstrom. मैम. सही तो बता रहे हो ना? Yes, ma'am. देख के तो नहीं बता रहे? नहीं मैम, सोल्व किया है. lambda 1 is equal to ax upon 4f and lambda 2 is equal to ax upon 5f. हाँ, ठीक ठीक, गुड. शुभम. रवि कुमार. Ma'am, 400 and 500 same answer. हाँ, ठीक. साक्षी. Yes, ma'am. Lambda 1 equals to 500 angstrom and lambda 2 equals to 400 angstrom. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो इसको एक बार बोर्ड पे भी करना है. जल्दी से बोर्ड पे कर लेते हैं, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स
are not able to solve this question. तो देखिए डिफ्रैक्शन मिनिमा का फॉर्मूला क्या है? a sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है। और sin थीटा क्या होता है? x अपॉन s, है ना, x अपॉन s। तो x क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा और जहां पे अपना मिनिमा बन रहा है उसकी डिस्टेंस। तो ये 5 mm एम करेंगे तो 10⁻³ मीटर अपॉन f फोकस डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो ये हो गया sin थीटा, ठीक है। अब लैम्डा 1 के लिए जब ये मिनिमा का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या होगा? a sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा 1 और m की वैल्यू लैम्डा की है 4, फोर्थ मिनिमम, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। अब लैम्डा का निकाल लेंगे, लैम्डा 1 इक्वल टू a sin थीटा x अपॉन s और 4 नीचे आ गया into 4। तो a कितना है? a है स्लिप विड्थ 0.04 mm, 10⁻³ हो गया। x 5 into 10⁻³ divided by x तो 1 है, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 2 5, तो 5 6 7 8 हो गया 5 into 10⁻⁻8 मीटर और 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो गया लैम्डा 1। ऐसे लैम्डा 2 निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला आएगा, इसमें नीचे 4 की जगह 5 आ जाएगा क्योंकि लैम्डा 2 के लिए फिफ्थ मिनिमा बन रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अपने हैंड लो कर लीजिए बिकॉज नाउ वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, सॉरी क्वेश्चन 2। मनीषा को कोई डाउट है क्या? यस मैम। मैम वहाँ पे 10⁻³ कैसे और 10⁻² होना चाहिए था ना? मिलीमीटर सेंटीमीटर होता है 10⁻²। नो मैम, उसके बाद 0.04 को किए ना मैम 10⁻³ तो ये भी तो मिलीमीटर है, ये भी तो एमएम है 0.04। ओह मैम सॉरी मैम, हम गलत लिख लिए थे। थैंक यू मैम। क्वेश्चन light wave of 1500 angstrom incident on a slit of width 22 width 22 into 10⁻⁵ centimeter. Find the angular difference between first and second minima
first and second minima from the central maximum. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा तो पहले तो फाइंड आउट करना है, फिर थीटा जो भी उधर आएगा तो साइन इनवर्स लिख देंगे उसको। ठीक है, light wave of 1500 angstrom incident on a slit of width 22 into 10 to the power minus 5 centimeter. तो a और lambda given है, find the angular difference between first and second minima, है ना, from the central maximum. minima के लिए पूछा है तो minima की कंडीशन अप्लाई करेंगे डिफ्रैक्शन के लिए, a sin theta equal to m lambda. फर्स्ट के लिए m1 हो गया, सेकंड के लिए 2 हो गया, और a is given 22 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर. साइन थीटा निकाल लेंगे, लैम्डा भी गिवन है, फिर थीटा निकाल लेंगे. फर्स्ट और सेकंड m को पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है. ठीक है, फिर अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो या मोबाइल से भी आई थिंक हो सकता है. साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल के थीटा निकालेंगे, थीटा 1 एंड थीटा 2. ओके, नीतीश मोदी, अंकुर कुमार और भी करके बताइए जल्दी जल्दी. पूरा थीटा की वैल्यू बतानी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके. साइन इनवर्स भी आपको फाइंड आउट करना है. गौरव सोनकर. ओके, तो अंकुर कुमार बताएंगे. पाई बाय 6 में. पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री. यस मैम. 30 डिग्री क्या है, 2 थीटा निकालना है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए मिनिमा. सेकंड वाला का निकालेंगे. सेकंड वाला होगा 30 डिग्री. वेरी गुड. और फर्स्ट वाले का फर्स्ट साइन इनवर्स में बताओ कितना आएगा. फर्स्ट के लिए साइन थीटा कितना आया. ओके, राहुल. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग राहुल. मैम साइन थीटा आया फर्स्ट के लिए साइन इनवर्स 1/4, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4. वेरी गुड. और सेकंड के लिए मिस अगर अल्फा ले लेते हैं सेकंड का डिफ्रैक्शन, तो साइन अल्फा, ये अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, दैट इज 30 डिग्री. अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री. तो मैम साइन इनवर्स 1/4 का वैल्यू पता नहीं है मैम, साइन इनवर्स 1/4 का. ओके, वेरी गुड राहुल. नीतीश. हेलो मैम. हेलो नीतीश. मैम फर्स्ट के लिए जो एंगुलर विड्थ आएगा मैम वो है साइन इनवर्स 1/4 एंड सेकंड के लिए मैम 5/6 एट 30 डिग्री. वेरी गुड. साइन मैम इनवर्स. वन क्वेश्चन इज मैम. यस. हेलो मैम, we have been asked ma'am find the angular difference between the first minima and second minima from the central maxima. Then Yes. we have to apply ma'am a sin theta is equals to L lambda, the condition. Yes. And ma'am for the first minima, this is sin theta 1 we can put, and this is and we can put is 1. And Yes. then for the second minima, this is 2 lambda, a sin theta 2 is equals to 2 lambda. Yes. And then we have to find the difference between these two. No, difference between central maximum means central maxima is where all the lines are
parallel to the central line. But ma'am, we have been asked angular of angular difference. from the central maxima. Yes, ma'am. Angular difference निकालना है ना मैम, दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस. नहीं, angular difference of लेते. अब ठीक है? Yes ma'am, yes ma'am. मतलब वो जो डायग्राम था इसमें तो यहाँ से ऐसे जा रहा है कि सेंटर मैक्सिमा है और सपोज यहाँ फर्स्ट मिनिमा बनाया सेकंड मिनिमा बनाया तो जो लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी बीच में लेंस भी है तो लेंस से ऐसे होते हुए तो ये एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थीटा और सेकंड के लिए एंगुलर डिफरेंस थीटा सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा से ना लेंगे. हाँ सेंट्रल मैक्सिमा से. यस मैम. मैक्सिमा से ये फर्स्ट मिनिमा और ये सेकंड मिनिमा. तो ये फर्स्ट मिनिमा की हो गया ये थीटा 1 और सेकंड के लिए ये पूरा थीटा 2. यस मैम. सुधांशु. यस मैम. यस सुधांशु. मैम लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स √15 माइनस √3/8. इतना कॉम्प्लिकेटेड सा कैसे आ गया? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? मैम जैसे θ1 तो साइन इनवर्स 1/4 और θ2 साइन इनवर्स 1/2. तो मैम लास्ट में साइन इनवर्स a माइनस b वाला फॉर्मूला लगाए. अच्छा साइन इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला लगा दिया. ओके हम लोग तो क्या करते हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके निकाल देते हैं. आपने अच्छा किया वो फॉर्मूला अप्लाई किया. दैट्स गुड. जितेंद्र. यस मैम. उसमें θ1 और θ2 निकालना था फिर उसको डिफरेंस भी करना था दोनों के बीच. मतलब θ1 माइनस θ2 ही निकालना है. Find the angular difference of first and second minima from the central maxima. Central maxima ये है ना ये वाली लाइन. हाँ हाँ उसी से मतलब डिफरेंस निकाला. ये θ1 θ2. हाँ निकल गया ना. हाँ ठीक. ओके तो एक बार इसको बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं for those students who haven't tried before. वरना तो बहुत ही सिंपल थी. For minima we have integration a sin theta equal to m lambda. For first minima m equal to 1 and here a is equal to 22 into 10 raised to power minus centimeter के also मीटर में convert करना है -7 मीटर. और लैम्डा 500 एंगस्ट्रॉम. तो इसे हम लिख सकते हैं 5.5 into 10 raised to power minus 7 मीटर. ठीक है. So now sin theta 1 equal to 1 into 5.5 into 10 raised to power minus 7 and lambda upon a 22 into 10 raised to power minus 7.
0.5. 55 upon 290. Area 1 by 4. 0.25. ठीक है, थीटा 1 हो गया, साइन इनवर्स 0.2. That is equal to एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है 14 डिग्री 29 minutes. 14 degree 29 minutes, which is obtained by using scientific calculation. Okay. So 4 minima mean investigation. First minima and equal to 1. So second minima theta 1 sin theta 2 will be equal to यहाँ 1 में से 2 हो जाएगा 2 into 5.5 into 10 to the power minus 7 upon 22 into 10 to the power minus 7. तो ये obviously इसमें डबल हो जाएगा 1 by 2 0.5. तो थीटा क्या हो जाएगा sin inverse 0.5, that is equal to 30. इसमें डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो प्लीज लो योर हैंड, और इसमें डाउट है तभी रेज करो. नीतीश में डाउट है? नो मैम. कौशिक यस मैम. हाँ, कोई डाउट है आपको? मैम वो एंगुलर डिफरेंस निकालना या फिर एंगुलर मतलब कि इसका एंगल निकालना, उसका थीटा 1 और थीटा 2 निकालना था. थीटा 1 थीटा 2 एंगल निकालना, उसी को एंगुलर डिफरेंस बोल देते हैं ना, कि एक सीधा. मैम अगर ये मैं एक्चुअली बोलना था कि अगर हम उसका डिस्टेंस दोनों का y1 और y2 निकाल लेते हैं, अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, और उसको फोकल डिस्टेंस से डिवाइड करें तब भी तो वही आता ना. हाँ वही आता है, वही तो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा y अपॉन f. हाँ वही. यस मैम. और थीटा टेंड्स टू मतलब कि 0 पे वो sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है. हाँ यस मैम, वही डाउट था. यहाँ पे x गिवन नहीं है ना, तो हमने ऐसे निकाल लिया. यस मैम, ठीक है. ठीक. फजल को कुछ पूछना है? यस मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. यहाँ पे यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा है मैम. वो 55 into 10 to the power minus 7 क्यों लिखे हैं? वो तो एंगस्ट्रॉम है ना. हाँ तो देखो एंगस्ट्रॉम तो 10 to the power minus 10 होता है ना. क्या देखिए 5500 into 10 to the power minus 10 होता है. ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं इसको 5500 एंगस्ट्रॉम को? यस मैम. अब देखिए क्या है ना, ये 2 0 लाइन में क्या हो जाएगा 8. हाँ यस मैम. अब मैंने यहाँ बीच में पॉइंट लगा दिया तो एक और कम हो जाएगा. अच्छा यस मैम. यस यस मैम. ओके मैम. यस मैम, समझ. और किसी को डाउट है? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Question number 3. Light wave of wavelength 5000 angstrom. Angstrom. Incident on a double slit.
if slit width is and we see the diffraction pattern, ठीक है, अंडरस्टूड है, तो हम मीनिंग पे डबल स्लिट पे इंसिडेंट किया, स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा हमने। if slit width is 22 into 10 to the power minus 5 centimeter. And the opaque region, ये slit width को small a होता है और opaque region होता है small b, ठीक है? Then between the slits is of 44 into 10 to the power minus 5 centimeter. Find the missing interference maxima. मिसिंग ऑर्डर वाला है, मिसिंग इंटरफेरेंस मैक्सिमा, ठीक है? इंटरफेरेंस मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई करेंगे, a plus b sin theta equal to n lambda, और डिफ्रैक्शन मिनिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा डिफ्रैक्शन मिनिमा से तो मिस हो जाते हैं, डिफ्रैक्शन मिनिमा है a sin theta equal to m lambda, ठीक है? तो अब n और m में रिलेशन निकालना है कि कौन से इंटरफेरेंस मैक्सिमा डिफ्रैक्शन मिनिमा से मिस हो गए, मिसिंग ऑर्डर। ए गिवन है, बी भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। sin थीटा तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, n और m में रिलेशन निकालते हैं। अभी तक किया नहीं किसी ने, a plus b अपॉन ए। लास्ट वाला टॉपिक देखिए, मिसिंग ऑर्डर वाला, उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू 2a है, b है ना ओपेक रीजन 44 और a है 22, 10 to the power minus 5 तो सेम होगा, तो b इक्वल टू 2, तो a प्लस b अपॉन a आएगा, b इक्वल टू 2 पुट करेंगे 3/1 आ जाएगा, n इक्वल टू 3 आएगा, n 1 2 3 पुट करोगे तो n हो जाएगा 369। आप लोग सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे, किसी ने बताया ही अभी तक? जिसने सॉल्व कर लिया प्लीज रेज योर हैंड। ओके सतीश, वेरी गुड, हाँ जी सतीश। Yes, hello ma'am. यस हेलो सतीश। My answer is n equal to 3m. n इक्वल टू 3m कैसे आया प्लीज? पहले मैम a plus b sin theta equal to n lambda, इसको सॉल्व किया, इसमें a और b का वैल्यू पुट किए इक्वल टू 22 into 10 to the power minus 7 मीटर, और b का वैल्यू पुट किए। इसी तरह डिफ्रैक्शन मिनिमा निकालें, a sin theta equal to m lambda, और इसमें n और m के बीच रिलेशन आ गया, n equal to 3m। ठीक, सुमित कुमार।
मैम मेरा आंसर भी इक्वल टू 3m आया मैम। वेरी प्रीति। हेलो मैम, n इक्वल टू 3m ही आया। वेरी स्वधा। Yes, ma'am. N equal to 3m ही है आंसर। नितेश मोदी का तो आ गया, गौरव सोनकर, मनीषा कुमारी, अक्षत। यस मैम, n इज इक्वल टू 3m। कैसे आया अक्षत? वही मैम फॉर्मूला पुट कर दिए, a प्लस b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा और a sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, और दोनों को काट दी। वेरी गुड। अंकित अग्रवाल। Yes, ma'am. N equals to 3m. वेरी प्रिंस। equal to 3m है। ठीक, चलिए प्रूव योरसेल्फ। इसको थोड़ा सा बोर्ड पे कर लेते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स। सो इंटरफेरेंस मैक्सिमम, अभी क्या है इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो कि मिस हो जाता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा एक कंडीशन है, a plus b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो हम मिस किससे होते हैं? डिफ्रैक्शन मिनिमा से। डिफ्रैक्शन मिनिमा a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। दोनों को डिवाइड करते हैं, ये इक्वेशन 1 ये 2, 1 divided by 2 तो क्या a plus b upon a equal to n upon n, ठीक है। और n equal to n a plus b upon a, ठीक है। तो m और n में रिलेशन का हम कर सकते हैं। a कितना है 22 और b है 44, तो 22 plus 44 रेडियस का -5 कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय a is 22 into 10 raised to the power -5। ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाला क्या होगा 66 डिवाइडेड बाय 22 and तो गया 3m, n equal to 3m for final condition is n equal to 3, मतलब m equal to 1 2 3 के डिफ्रैक्शन मिनिमा में n equal to in diffraction minima of order n equal to 1 2 3, the interference maxima of n equal to 3 6 9 will miss। तो ऑब्जर्व कौन से होंगे? n equal to 3 6 9 मिस हो गए, तो 3 से जो पहले वाले हैं 0 1 2 वो वाले ऑब्जर्व होंगे। n equal to 0, n equal to plus minus 1, n equal to plus minus 2 will be observed। n equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 will be observed in central maximum। सेंट्रल मैक्सिमा में ऐसे बहुत सारे इंटरफेरेंस मैक्सिमा इंक्लूडेड है, तो वो उनका ऑर्डर कितना है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है ना। 3 वाला तो गायब हो गया, फिर 4 5 ऑब्जर्व होगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, 6 वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है? गौरव
सुमित, मैम आप इंटरफेयर मैक्सिमा का जो फॉर्मूला लिखे ना a प्लस बी साइन थीटा टू n लैम्डा, तो a प्लस बी साइन थीटा में मैम पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, भले बाद में कट जाएगा लेकिन पहले तो अप्लाई होगा। हाँ वो तो हम जब इसका वो कर रहे थे when we were doing, और n लैम्डा नहीं n पाई होगा ना क्या मैम a प्लस बी साइन इक्वल टू n पाई ना, पाई पाई मैम थोड़ी बिकॉज बीटा टू n पाई होता है ये। कंडीशन तो हेलो। यही था, पाथ डिफरेंस a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, पाथ डिफरेंस निकाले थे ना हम, जब पाथ डिफरेंस a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा आता है, पाथ डिफरेंस तो लैम्डा में ही होगा ना। मैम डिफ्रैक्शन जैसे आप इंटरफेरेंस मैक्सिमा में लिए थे ना स्क्वायर बीटा इक्वल टू देयरफॉर बीटा इक्वल टू पाई, हम उस केस से बोल, बीटा इक्वल टू, हाँ पर फाइनल रिजल्ट तो यही आता है ना a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, a प्लस बी साइन थीटा पाथ डिफरेंस निकाले थे ना हम यस S2। मैम, हाँ ठीक है मैम, कोई दिक्कत, हाँ यस मैम मेमोराइज हो गया। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 फिर से सिंगल स्लिट का ही कर रहे हैं। राइट फिलिप ऑफ वेवलेंथ (5000 angstrom) is incident on a single slit. Incident on a single slit. The first minima is formed at 5 mm distance from the central maximum. The distance between slit and the slit is 2 meters. Find the slit width. Light wave of wavelength 5000 angstrom incident on a single slit. The first minima is formed at 5 mm distance apart from the central maximum. ठीक है, तो x हो गया 5 mm और distance between slit and screen is 2 mm, तो f हो गया 2 मीटर, 5 mm हो गया, तो sin थीटा तो पता चल गया। अब हमें a निकालना है, तो मिनिमा की कंडीशन a sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा है तो m1 हो गया,
lambda is 5000, a निकालना है स्लिप रेट, ठीक है। सुमित ने निकाल लिया। मैम a is equal to 10 to the power minus 4 मीटर, yes ma'am। वेरी गुड। गौरव 0.2 millimeter। गौरव 0.2 millimeter, मैम। 0.2 मिलीमीटर, वेरी गुड। अभिजीत Yes, ma'am. मैं हैंड प्रिंट कर ले रहा हूँ। 0.2 millimeter, ma'am. ठीक है। अनमोल कुमार गिरी, राहुल मैम 2 into 10 to the minus 4 meter। ओके ओके, सबका आ गया। अनीता 2 into 10 to the power minus 4 meter। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। A sin theta equal to m lambda for diffraction minima, A equal to m lambda for sin theta। A हमें फाइंड आउट करना है, m is 1 for first theta, lambda is 5000 angstrom, then is minus 10 meter, sin theta equal to x upon x, x कितना 5 into 10 to the power minus 3 meter, तो x है 2 meter, you get 5 into 10 to the power minus 3, तो ये 3 और 6 हो गए, तो 10 to the power minus 4 बच गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 into 10 to the power minus 4, that's 0.2 millimeter, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है? शुभम को इसमें डाउट है क्या? नो मैम। गौरव को भी नहीं होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन। मनीषा को कुछ पूछना है? मैम इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 में मैम आप जो लिखे थे n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 will be observed in central maxima, मैम ये वाला इसमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो कि डिफ्रैक्शन मिनिमा से मिस हो जाते हैं, तो वो हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि n 3, 6, 9 वाले मिस होते हैं। तो 3 से पहले वाले कौन से होंगे? 0, 1, 2। 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 ऑब्जर्व हो जाएगा। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 तो लिखा कि दोनों साइड होते हैं ना, सेंटर में। यस मैम। क्लियर हुआ डाउट? यस मैम, थैंक यू मैम। Question number 5. They did 6,000 extra. Incident on a double seat. Slit of width 0.15 mm. Width of the slit
0.15 distance between both the slits. Distance between the slits. .3 mm. Okay. Width of the slit तो A हो गया small a. Distance between the slit is 0.3. ये B हो गया. Opaque region हो गया. And focus distance of lens is 100 centimeter. Focus length हो गया. Focal length हो गया. Of the lens is 100 centimeter. ये हो गया F. Find the first 4 interface maxima. ठीक है, तो अभी देखिए इसमें A गिवन है, B गिवन है ना। तो अब कुछ मिसिंग ऑर्डर भी होंगे, तो पहले तो आपको ये पता लगना है कि मिसिंग ऑर्डर कौन सा है, उन सबको निकाल देना है। फिर जो बचे हुए हैं उनको उनका डिस्टेंस निकालना है, उनका डिस्टेंस मतलब x निकालना है। F गिवन है, x निकाल दो कि वो सेंट्रल मैक्सिमा से किस किस डिस्टेंस पे बने। तो पहले तो मिसिंग ऑर्डर निकाल देना है, तो मिसिंग ऑर्डर तो वही आ जाएगा 15 और ये 0.3 है, तो डबल है ना, B इज डबल ऑफ A, तो वही 3 के मल्टीपल वाले मिसिंग ऑर्डर होंगे। तो यहाँ पे वही 1 0 दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 6 नहीं दिखेगा। तो जैसे 1 2 4 5 उनके लिए x निकाल दो, x फाइंड करना है आपको, x1 x2 3 मिस हो जाएगा, x4 x5। ठीक है, तो पहले तो वो लिखना है कौन सा मिस हुआ, उसके बाद x निकाल दो। x के लिए sin थीटा x अपॉन f उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करके बताइए, x1 x2 x4 x5 निकालो। फॉर्मूला तो वही लगेगा इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए, a प्लस b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और sin थीटा को लिख देंगे x अपॉन f, a प्लस b x अपॉन f इक्वल टू n लैम्डा। पहले तो मिसिंग ऑर्डर में निकालना है। ठीक है, मिसिंग ऑर्डर वो 3 6 9 रूट्स। फिर अब ये फॉर्मूला जो आया इससे x निकालने हैं सारे, x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो 3 वाला जो सब मिस हो गया तो x3 तो गायब ही हो जाएगा, वो तो ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है,
तो नीतीश ने कर लिया, गौरव ने कर लिया। x1, x2, x3, x4 की वैल्यू बताएंगे मुझे। x1, x2, x3, x4, x5, x3 तो गायब हो जाएगा ना। तो नीतीश। हेलो मैम। यस नीतीश। मैम x1 का वैल्यू है मैम 1.33 मिलीमीटर। यस। x2 का मैम 2.66 मिलीमीटर। यस। एंड x3 का 5.32 मिलीमीटर। यस। एंड x4 का 6.5 मिलीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। x3 नहीं लिखेंगे, x3 तो गायब हो गया ना। x4, x5 लिखेंगे उनको। यस मैम, यस मैम। You have to mention that x3 is missed, है ना? यस मैम, यस मैम। Very good Nitish. Sumit. मैम x1 1.3, x2 2.6, x4 5.2 and x5 is equal to 6.9 नहीं 6.65 6.6 मिलीमीटर। यस मैम। हाँ, सारे मिलीमीटर में होंगे ना। यस मैम। वेरी गुड सुमित। गौरव। Yes, ma'am. Same answer, ma'am. 1.33 millimeter x1, x2 2.66 millimeter, x4 5.32, and that x5 6.65. Very good, Gautam. Manisha. Yes, ma'am. Ma'am, x1 1.3 millimeter, x2 2.6 millimeter, x3 will be missed, x4 5.3 millimeter, and x5 6.6 millimeter. Very good, Manisha. Very good. और बताइए, और किसने कर लिया? जल्दी जल्दी करके बताइए। सतीश। वेरी गुड सतीश। और जितेंद्र। और यस अक्षत ने कर लिया। वेरी गुड। अक्षत बताएंगे क्या है आंसर? मैम सेम है मैम। x1 1.33 मिलीमीटर, x2 2.66, x4 5.32 एंड x5 6.65। बहुत अच्छा। सतीश। यस मैम। x1 1.33 मिलीमीटर, क्या x2 अप्लाई किया? क्या मैम? फॉर्मूला क्या अप्लाई किया? फॉर्मूला a plus b sin theta equal to m lambda। और sin theta equal to क्या लिखा? x by f। वेरी गुड। और f equal to 1 मीटर हो जाएगा, तो x sin theta equal to x हो जाएगा। f कितना हो जाएगा? नहीं मैम, बोल रहे हैं sin theta equal to x by f होगा, और f equal to 100 सेंटीमीटर equal to मतलब 1 मीटर दिया हुआ है। 100 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। ठीक। जितेंद्र। यस मैम। x1 I 1.3 मिलीमीटर, x2 I 2.6 मिलीमीटर, x4 I 5.2 मिलीमीटर, x5 I 6.5 मिलीमीटर और x3 गायब हो जाएगा मैम। वेरी गुड। ठीक। तो इसको एक बार बोर्ड पे कर लेते हैं हम। ठीक है, पहले तो मिसिंग ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो लास्ट टाइम किया था, उसी को मैं लिख देती हूँ बस इनवर्स। हियर g equal to 2a, ठीक है ना? b equal to a 2.15, here b equal to 2a, so n equals to 3, 6, 9 will miss by n equal to 1, 2, 3, ठीक है? So we will observe only
equal to 1 2 0 तो आए 1 2 4 5 intermediates maximum ठीक है प्लस माइनस भी लगा देंगे प्लस माइनस तो सेम ही डिस्टेंस होगी सेंटर मैक्सिमा के इधर जितना आउटलाइन उधर होगा तो प्लस माइनस स्किप कर दो सिर्फ इसको ऐसे we'll observe only an equal to 1 2 4 5 intermediates maximum for intermediates maximum condition is a plus b sin theta equal to n lambda. Since sin theta equal to x upon f, x n equal to ठीक है ना x1 x2 x3 plus निकालिए x7 होने then we have a plus b x7 upon f equal to l or xn equals to n lambda f upon a plus ये फॉर्मूला होगा ठीक है now so n equal to 1 n equal to 1 means 4 5 निकालना है n equal to 1 x1 equal to n की जगह पर लिखिए लैम्डा कितना है गिवन 6000 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम means 10 to the power minus 10 meter upon a plus b a has 0.15 b has 0.3 क्या है 0.15 mm 0.3 mm तो mm है तो 10 to the power minus ठीक है तो कितना हो गया 6000 ये 3 ऊपर गया तो 6 हो गए एक 4 बच गए 6 into 10 to the power minus 4 है ना और ये कितना हो गया डिवाइडेड बाय 5 4 0.45 ठीक है तो क्या करेंगे ये 0 0 करते हैं तो 600 divided by 45 into 10 raised to power minus 4 45 1 50 150 divided by 45 कितना होगा point हो गया 60 अच्छा चलो टाइप करते हैं 1.2 into 10 raised to power minus 3 मीटर ठीक है हो गया x1 फिर ऐसे x2 निकालेंगे similarly x2 equal to 2 into 6000 10 raised to power minus 10 0.15 plus 0.3 10 raised to power minus 2 मतलब जो आया है यहाँ उसका 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2.4 हो गया ये थोड़ा डिवीजन में गड़बड़ हो सकता है 1.3 है 3 बचा ना हाँ 3 पे चढ़ेगा तो ये 2.6 हो जाएगा x3 में ये 3 आ जाएगा ना 3x1 हो गया तो हो गया
3.9 3.9 होता है क्या? ठीक है, 10 to the power minus 3 और x3 तो मिसिंग है, x3 हटा दो, x3 तो मिसिंग है, x3 is missing, x4 equal to 4 x1 by 2 ठीक है, और x5 ये डिवीजन एकदम ठीक करोगे तो प्रिसाइज रिजल्ट्स आएंगे, x5 और 5x1 हो गया 625 ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? सुमित कुमार को डाउट है क्या? नहीं, ओके ठीक है, सिंपल। तो आपका जब एग्जाम होगा तो इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मिसिंग ऑर्डर पे, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा, बस वो फॉर्मूलाज थोड़े से याद रखो, थोड़ा ध्यान रखो कंसेप्ट, देन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विल बी इजी। जितेंद्र यस मैम, कह रहे थे मैम, आप बोल रहे थे कि डाल देंगे गूगल क्लासरूम में, क्वेश्चन डाले नहीं अभी तक। वापस बोलिए। क्वेश्चन आप कह रहे थे कि डाल देंगे गूगल क्लासरूम में, अभी तक आया नहीं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही डालने वाली थी मैं। हाँ, तो ये और भी क्वेश्चन मैम लाइक इसी तरह जैसे 4-5 है। और क्या क्वेश्चन डालोगे? और तो सब लेंथी क्वेश्चन ही होंगे ना, डिस्क्राइब द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये डाल दोगे तो ये पूरा तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। नहीं, मैं कह रहा था ना कि मतलब और भी क्वेश्चंस आप डालने वाले थे ना गूगल क्लासरूम में प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली आज जैसे मेरी क्लास आ गई तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करा दिए, अगर मेरी क्लास नहीं होती, किसी और टीचर की होती, तो ये मैं गूगल क्लासरूम पे डाल। ओके ओके मैम, ठीक। हर्ष गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो पूछ रहे थे मैम, हम लोग फैमिलियर नहीं है कि मैम एंड सेमेस्टर में कैसा क्वेश्चंस आता है, तो आप उसका थोड़ा अगर बता देते तो। सेम जैसे मैं बोर्ड पे कराती हूँ ना आपको, लाइक जैसे यही क्वेश्चन आ गया, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड से। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। राहुल मैम हम लोग का सेकंड मिड टर्म कब से है? अभी डेट नहीं आई, 20 मार्च के बाद ही होगा। थैंक यू। बस आप प्रिपेयर रहो, जितना पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से लर्न कर दो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर दो उस पे, तो जब भी होगा तो नोटिस आ जाएगा। पर हाँ ये है कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था, नोटिस 1-2 दिन पहले ही आया, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग टेंटेटिव डेट बता देते हैं कि ये होगा, अब 10 मार्च फॉर एग्जांपल 10 मार्च बता दिया, वैसे भी हो सकता है 12 मार्च को जाए, 13 मार्च को जाए, वो डिपेंड करता है कि नोटिस कैसे निकलता है वो। तो इसलिए प्रिपेयर रहिए आप, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ लीजिए, दैट इज प्रिपरेशन। आशुतोष गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग आशुतोष। मैम बोले प्रैक्टिस क्वेश्चन गूगल क्लासरूम पे डाल दीजिएगा ना। ठीक है, आई विल ट्राई। जैसे और क्या क्वेश्चन डालेंगे, और तो आप बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए खुद ही। ओके। रिशु हेलो हेलो मैम, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज तो आ रहा है पर क्लियर नहीं है। हेलो हाँ रिशु बोलिए। मैम बोल रहे थे कि मैम एंड से मैम फर्स्ट मॉड्यूल से फिफ्थ मॉड्यूल तक पूरा आएगा।
ऑब्वियसली एंड सेम में सारे 6 मॉड्यूल है ना, 6 के 6 आएंगे। 6 ठीक है मैम। कुमार अनमोल, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम पूछ रहे थे कि मैम ये न्यूमेरिकल और मैम थ्योरी के लिए कौन सा बुक प्रेफर करें मैम? ऑप्टिक्स की है अजय घटक, ऑप्टिक्स बाय अजय घटक। अजय मैम, अजय क्या नाम? घटक, ए घटक। ऑप्टिक्स बाय ए घटक। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है शायद सॉफ्ट कॉपी। और मुझे अगर मिली तो मैं आपको गूगल क्लास मैम होगा तो मैम गूगल क्लासरूम में भेज दीजिएगा मैम। हाँ ठीक है। अगर ठीक है मैम। तेजस्वी, मैम वही बोल रहे थे कि इसे बुक मिलता नहीं है मैम। हाँ तो ठीक आप ही है, डाल दी तो अच्छा रहता। ठीक है, हम डाउनलोड करके आपको भेज देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, गूगल क्लासरूम। ओके, तो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए। आशुतोष को कुछ पूछना है? आदित्य, ओके, तो फिर आज मोस्ट प्रोबेबली आपकी 150 पे फिर से फिजिक्स की क्लास हो सकती है। 150, ठीक है। तब झा सर आएंगे, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, जो कि आपको पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो 150 पे आप प्रिपेयर रहेगा, 150 पे फिजिक्स की क्लास, ठीक है। हेलो मैम। यस मैम आज मैम केमिस्ट्री भी है मैम 3:30 बजे से। 3:30 बजे से केमिस्ट्री है, अच्छा। तो 1:50 से फिजिक्स हो सकता है। ओके मैम। मैम कितना मैम घंटा का होगा? 1 घंटा मैम? हाँ 1 घंटा, ओके मैम। ठीक है। आज पोलराइजेशन पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। 1:50। ओके मैम। नितेश कुमार, नितेश को कुछ पूछना है? आदर्श, सुमित। मैम ये आपका लास्ट है ना, मतलब आज का जो क्लास वो? हाँ लास्ट। हेलो हेलो, ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम आदर्श। बोल रहे अगर 1:50 से फिर क्लास रहेगा, फिर मैम 1:50 से क्लास है उसका पोलराइजेशन का, फिर 3:30 बजे से हम लोग का फिर क्लास है। तो मैम डाटा तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो क्लास कैसे होगा फिर? हाँ ये तो प्रॉब्लम है। मैम कोई सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन तो यही मैम कभी मैम एक दिन में 4 क्लास होता है, कभी एक दिन में 1 ही क्लास होता है, तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं मैम केमिस्ट्री का दिन में। अल्टरनेट डेज करके रखते हैं, अल्टरनेट डेज में 2-2 क्लास करके रखते तो ठीक रहता। एक मिनट। अभी क्या है ना कि एनबीए टीम आ रही है अपने कॉलेज में, तो उसके कारण 3 दिन मतलब आज कल और परसों 3 दिन थोड़ा सा ऐसे होच सा रहेगा, ज्यादा क्लासेस होगी, फिर बाद में तो वैसे नॉर्मल। वो सिर्फ 3 दिन के लिए अभी ब्रेक के लिए मे बी। ठीक है मैम। संडे है परसों, तो संडे को तो नहीं होगा शायद, तो आज और कल 2 दिन का ही है। मैम एटलीस्ट क्लास होगा, इतना तो निश्चिंत रह सकता। वापस बोलिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। चलो ठीक है। मैम पूछ रहा है कितने घंटे का क्लास रहेगा, कितने घंटे का क्लास रहेगा एटलीस्ट, वो पूछ रहा था। 1 घंटे का। वही पूछ रहा था मैम वो। हाँ ठीक। सो अभी एंड करें? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस मैम।